हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंस इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। देखते हैं जी इस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। टू discrete random variables x and y are said to be statistically independent if and only if for all possible pairs of values x, y, j, the joint probability function f of x, y can be expressed as the product of the two marginal probability functions, that is x and y are independent. If f of xy equal probability of x equal xi and y equal yj, probability of x equal xi into probability of y equal yj for all I and j, g of x into h of y. चूंकि x की सारी जितनी थी उनके सामने करके g of x बनता है और y बनता है h y. It should be noted that joint probability function of x and y when they are independent can be obtained by multiplying together their marginal probability functions. ये आखिरी बात यही कंसेप्चुअल बात है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की प्रोडक्ट ले ली जाए तो फिर हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है एक्स और वाई का वो इंडिपेंडेंट कहलाता है. एग्जांपल देखते हैं. An urn contains three black and red, three green balls, and two balls are selected at random from it. If x is the number of black balls and y is the number of red balls selected, then find the joint probability functions f of x y. ये पहली बात जो मालूम करनी है probability है x plus y less than equal to 1. दूसरी बात the marginal probability distribution g of x and h y ये भी मालूम करेंगे. The conditional probability distribution f x by 1 ये भी मालूम करेंगे. Probability of x equal 0 by probability y equal 1 and rx and y dependent. आखिर में इसका तलाश. आइए चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या आंसर है. The sample space S for this experiment contains 8 combination 2 equal to 28 sample points. The possible values of x are 0, 1, 2, and those for y are 0, 1, 2. The values that xy can take on are 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, and 2, 0. We desire to find f of xy for each value of xy. f0, 0 कैसे है? Probability of x equal 0, y. Where event x equal 0, y is equal to represent either black, not red ball is. यानी x0, y0 से ये पता चलता है कि ना ही ब्लैक बॉल को सिलेक्ट किया गया और ना ही रेड बॉल को सिलेक्ट. Implying that two selected are green balls. This event therefore contains 3 combination 2, 2 3 combination 0, 2 combination 0, 3 combination 2. That is 3 subgroups. F of 0, 0, 3 over 28 आंसर आ गया. और f of 0, 1 इसका मतलब है कि ब्लैक बॉल सेलेक्ट नहीं हुआ, 1 रेड सेलेक्ट हुआ तो लाम होगा एक फिर ग्रीन सेलेक्ट. जब हम इसको भी हल करेंगे इनके कॉम्बिनेशंस को तो 6 over 28 आंसर आएगा. लाइकवाइज अगर f 1, 1 हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब 1 ब्लैक बॉल सेलेक्ट हुआ, 1 रेड सेलेक्ट हुआ और ग्रीन नहीं सेलेक्ट हुआ. जब कॉम्बिनेशन की सूरत में से हल करेंगे तो आंसर 6 over 28. Similar calculations give the probabilities of other values and joint probability
function of x, y are given by 0, 0, 3 by 28, 0, 1, 6 over 28, 1, 0, 9 over 28, 1, 6 over 28, 0, 2 के लिए 1 over 28, 2, 0 के लिए 3 over 28. एक और टेबुलर फॉर्म में अगर लिखें x01 to y01 to 00 के लिए ये आंसर, 01 के लिए ये, 02 के लिए ये आंसर है, 10 के लिए ये, 11 के लिए ये आंसर है, 12 के लिए ये आंसर है, 20 के लिए this, 21 this और अब अगर हम सम लेते हैं तो वाइस ये ये पहली रो का सम, ये दूसरी रो का सम, ये तीसरी रो का सम, कॉलम्स में ये पहले कॉलम में, ये दूसरे का, तीसरे का। जब के टोटल सम लें कॉलम का मान था और टोटल रो करें तब ये आंसर होगा। Clearly joint PD probability distribution of the two random variable x y can be represented by this one. और अगर आपने p of x plus y less than equal 1 कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब x y का सम 1 से कम होना चाहिए। ऐसी सूरत में हमारे पास जो सेल्स होंगे पेयर होंगे वो 0 0 0 1 और 1 1 0 ये वाले। अब इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई करके जब आंसर हासिल करेंगे तो ये हमारे पास तीनों के लिए 9/14 आंसर आएगा। लेकिन जब हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब x के लिए अलग, y के लिए अलग, वो इन दोनों टेबल्स में दी गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन f of x और 1 के लिए ये फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू हासिल की गई जो कि 3/1 और f of x 1 और 0/1 के लिए 1/2, 1/1 के लिए 1/2 और 2/1 के लिए टेबल की शक्ल में ये वैल्यूज दे दी गई। फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0/y equal 1, इसका आंसर 0 और 1 अप्लाई करने पर 1/2 f of 0 1 ये हमारा 6/28 टेबल में आंसर आ सकती है। इसका मार्जिनल g0 पर ये है और जो कि h1 12/28 तो यहाँ से ये जाहिर f of 0 1 is not equal g of 0 h1 यानी x और y स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट क्योंकि g और h दोनों की प्रोडक्ट से f of 0 से ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम, दोनों की प्रोडक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला आंसर दिया। इसलिए हम ये बात कहने में जानब है कि ये जो x और y वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट। देखते हैं हमने क्या देखा है आज के लेक्चर में। एक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के हवाले से और उससे पहले हमने इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट देखे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के हवाले से और उसका ये मल्टीपल चॉइस में फार्मूला आता है। ये फार्मूला एफ ऑफ एक्स वाई
जी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एक्स इंटू एच वन, ये फार्मूला। इस फार्मूले के बाद ये एग्जाम्पल 6 सॉल्यूशन देखते हैं। आज के लेक्चर में नहीं, बाकी